Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. So today we are going to start the second lesson of unit number 1 of Iqra Applied Grammar Book 2 Simple Present Tense. First of all, I'll give you the feedback of the homework that was given to you by me yesterday. And the homework was you practice exercise A, circle the correct options. ये आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था और उससे पहले हम काफ़ी हद तक सफिशिएंट ड्रिल कर चुके थे एंड आई होप दिस एक्सरसाइज there will be no problem for you. So let's start and check whether you have done it right or wrong, and if you have made any mistake you will correct it while looking at the options given in the exercise A. Now first option is it snows in the winter. ये सेंटेंस पहले ही हो गया था. The second option is, or the second sentence is, Amina plays in the orchard daily. जैसा कि आपने देखा हुआ है plays को सर्कल किया गया है. As we know that in simple present tense if we have a singular subject तो singular subject के साथ verb के साथ s और es का इजाफा किया जाता है तो ये plays होगा. Third sentence they do not, does not know. The answer, as we know that we use do not with they, not, does not. तो correct option do not. Fourth sentence she do not, does not plant a tree in every summer season. हमने does not को circle किया है. She always contain does not for negative sentence in simple present tense. Sentence number 5, you always completes your homework in time. We use complete with you, not completes. S और yes का इजाफा you के साथ नहीं होता. That's good. The sixth option is honeybees prepares honey in the beehive. We have plural noun subject चूँकि honeybees plural है तो we use prepare instead of prepares honeybee in the beehive. I hope आपने भी इसको इसी अंदाज में किया होगा and there will be no mistake from your side. Now it's time to move on to the next exercise, exercise B. And we'll do this exercise together. As you can clearly see that first we read out the instructions. हम पहले instructions को read out करेंगे और read out करने के बाद हम इस exercise को will try level best to do it together. Exercise B, look and complete the sentences with the words below. हमने जो नीचे दिए गए sentences हैं इनको complete करना है इन ऑप्शंस के साथ जो हमें इस बॉक्स में दी गई हैं. फर्स्ट आई रीड आउट दीज ऑप्शंस फॉर यू. द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट लाइक. ये नेगेटिव का सेंटेंस में इस्तेमाल होगी. फॉल, राइज, नॉट गेट अप, वेयर, टेक. एज यू कैन क्लियरली सी दैट द राइज ऑप्शन हैज़ ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड. ये इसलिए हाईलाइटेड कर दी गई है चूँकि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस में हमको ये ऑप्शन सॉल्व फॉर्म में दे दी गई है. द फर्स्ट सेंटेंस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो ये पहली ऑप्शन हमारे लिए कर दी गई है. विल स्टार्ट विद द सेकेंड ऑप्शन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज शी डैश एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द समर. शी डैश. अब हमने ऊपर ऑप्शन देखनी है कि इन सब में से कौन सी वाली ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल रहेगी. Not like, fall, not get up, wear or take. चूँकि and take. Now we look at the options for the first sentence. She dash an umbrella during summer. तो हम ऊपर ऑप्शंस में से देखेंगे कौन सी वाली ऑप्शन इस सेंटेंस के लिए सूटेबल हो सकती है. जो वर्ब है like, fall, not get up, wear and take. इसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन हो सकती है शी डैश एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द समर, शी टेक्स एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द समर.
तो ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ द थर्ड सेंटेंस, वी डैश वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। तो क्लॉथ्स के साथ हम देखेंगे इनमें से कौन सा वर्ब सुटेबल हो सकता है। नॉट लाइक, फॉल, नॉट गेट अप, वेयर। चूंकि द वर्ड वेयर इज सुटेबल, तो सेंटेंस नंबर 3 के लिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द फोर्थ सेंटेंस, लीव्स डैश फ्रॉम ट्रीज इन द ऑटम। अब हम देखेंगे लीव्स के साथ ऑटम के महीने में कौन सा वर्ब सुटेबल रहेगा। नॉट लाइक, फॉल, नॉट गेट अप। As you can see that students, the option fall will be suitable with the word autumn। क्यों कि leaves fall from trees in the autumn। Sentence number 5, children dash to take medicine। Now we have two options, not like, not get up। The one thing that you keep in your mind that, एक बात जिसका आप ख्याल रखेंगे, हम जब नेगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो हम उस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे जिसको नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमने कोई नेगेटिव का सेंटेंस लिखना होता है तो हम डू नॉट या डज नॉट से बनाते हैं। तो ये नॉट लाइक ऑप्शन नहीं होगा, हम कंप्लीट ऑप्शन लिखेंगे। मगर यहाँ पर चूँकि ये ऑप्शन सूटेबल है तो हम इसका इंतखाब करेंगे फॉर नंबर 5। सेंटेंस नंबर 6, ही डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। चूँकि हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई विल कंप्लीट दैट एक्सरसाइज फॉर यू एंड आई विल शो यू एंड आई विल गिव यू फीडबैक। नाउ वी गो थ्रू द ऑप्शंस क्विकली, चूँकि हम इनको पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। सेंटेंस नंबर 2, शी डैश एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द समर। शी टेक्स एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द समर। टेक्स आएगा चूँकि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस पर एस का इजाफा करते हैं। सेकेंड सेंटेंस, वी डैश वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर। हम सेकेंड ऑप्शन को भी हमने सेलेक्ट कर लिया था। नाउ it's time to move on to the sentence number 4, leaves fall from trees in the autumn। हमने fall की ऑप्शन सेलेक्ट की थी, चूँकि लीव प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम fall को सेलेक्ट करेंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 5, चिल्ड्रन, हमने नोट लाइक की ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। नाउ वी हैव टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, सो वी यूज डू नॉट लाइक। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू टेक मेडिसिन। And the sixth sentence, he dash early in the morning। चूँकि हमने नॉट गेट अप की ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, he doesn't get up early in the morning। सो ये एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, यू विल डू दिस एक्सरसाइज एज योर होमवर्क। This exercise will be done by you as your homework. First, I'll read out the instructions for you and then I'll explain you how to conduct this activity and then an example already done for you. And the statement is, look and complete the sentences। आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहली ऑप्शन आपके लिए कर दी गई है। अब पिक्चर्स में एक पिक्चर के ऊपर क्रॉस है और दूसरे के ऊपर टिक है, यानी जिस पिक्चर के ऊपर क्रॉस होगा उस पिक्चर का सेंटेंस नेगेटिव में होगा और जिस पिक्चर के ऊपर टिक है उसका सेंटेंस पॉजिटिव में होगा। आप फर्स्ट एग्जांपल से देख सकते हैं, वी हैव टू वर्ब राइड एंड फ्लाई। एंड इफ यू लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ही राइड्स अ बाइसाइकिल, he does not fly a kite। चूँकि kite के ऊपर क्रॉस था
तो ही डजंट फ्लाई अ काइट, और बाइसाइकिल के ऊपर टिक था तो ही राइड्स अ बाइसाइकिल। आप ऐसे ही द रिमेनिंग सेंटेंसेस को करेंगे। हमारे पास सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6, वी हैव 6 ऑप्शंस। आप इन 6 ऑप्शंस को करेंगे, पिक्चर्स की मदद लेके करेंगे। आप वर्ब देखेंगे कि पिक्चर पे जो कौन से वर्ब के ऊपर क्रॉस है और कौन से वर्ब के ऊपर टिक है। जो टिक वाला वर्ब होगा उसको आप पॉजिटिव में करेंगे, एंड क्रॉस जिस पिक्चर के ऊपर होगा उसके वर्ब को आप नेगेटिव सेंटेंस के तौर पर करेंगे। इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड इंशाअल्लाह ताला टुमारो आई विल कम बैक विद द फीडबैक। अस्सलामु अलैकुम।